नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। Please subscribe to the channel. When you click to that icon, subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Can we have the icon on, please? Nation Now, the fastest growing channel of the nation. When you click to that icon, subscribe. जी. When you click to that icon, subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Abariyako Jambu to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili, and there's a whole lot of people, Yes. by the way. A whole lot of people. And by the way, Pradeep ji, the new US Ambassador Sergey Gore has said that India is the most important country for the United States of America, and very shortly all the problems that are there between President Trump and Prime Minister Modi will be resolved because they are genuine friends. Yes. And they have also invited India to the Silicon Congress. They have said that India should be a part of it, should participate in it, and so on and so forth. और उसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने एक बार फिर वार्निंग दी है ईरान को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान के अंदर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो इंटरवीन करेंगे प्रदीप जी, क्योंकि साथ में उन्होंने ये एक बिल भी आ गया है, और नहीं साथ में उन्होंने कल रात को एक ट्रुथ सोशल के ऊपर उन्होंने एक पोस्ट किया था कि जो भी देश व्यापार करेगा ईरान के साथ उसके ऊपर यूएस में 25% टैरिफ लग जाएगा, ऐसा ट्रम्प साहब ने कहा है। लेकिन मुझे लग रहा है ट्रम्प साहब भूल गए कि यूएस का ईरान के साथ $861 मिलियन का खुद का ट्रेड है, तो अपने ऊपर लगाएंगे क्या सबसे पहले 25% टैरिफ जो है? मतलब समझ में नहीं आया मुझे। No, with Trump it's so erratic. One he says, my friend dear Modi, and I think the ambassador has said that Sergey Gore. Sergey, he said he's a real true friend. Yes. When Trump says something, he means it. But Trump says the other thing also. Yes. So what does he do you mean? believe? So what does he mean? How can we believe both things? Both things. Yes. और सरगे गौर साहब कहते हैं कि भाई मोदी जी और ट्रम्प साहब की बड़ी अच्छी दोस्ती है और माशाल्लाह, मतलब वो दे शुड बी able to resolve any differences. But the only thing is that now the other thing which has come out, Pradeep ji, is that as far as the US is concerned, all those professionals who had been working on extended visa, के वीजा आपका खत्म हो गया उसके बाद उसको एक्सटेंशन मिल गई, he says now he's going to shut down all those extended visas and going to send everybody home. Now those people had called their families over to the US. So are they going to come back home? I mean, I don't know what's happening over there. All the IT majors in the US, including Google, including Microsoft, including Apple, including Dell, including just about everybody, they've all said we can't do without Indian IT professionals. Exactly. So I'm not sure what is he talking about. I'm really not sure. So mostly his orders and diktats are prospective, not retrospective. Yes. So the future is what he holds, but the future is how long is he there? That's another thing that people are guessing, because the courts the courts are started interfering. Are you allowed to take the decisions that you're taking? और आज और कल के बीच में, मतलब आज रात को कोई, मुझे लग रहा है कुछ 2 या 3 बजे हमारे टाइम के मुताबिक यूएस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा कि जो ट्रम्प टैरिफ हैं वो लीगल हैं या नहीं। और अगर ट्रम्प टैरिफ इलीगल हैं तो ट्रम्प साहब जैसे कहते हैं पता नहीं कितने $1 ट्रिलियन उनको वापस देने पड़ेंगे जो टैरिफ उन्होंने कलेक्ट किए हैं। लेकिन किसको वापस देने पड़ेंगे? The point is he'll have to give it back to the American people. He will not have to give it back to the countries where these goods have originated from. So that is something which people don't really realize. In any event, things are going along, absolutely fine. And the only thing that I'm worried about over here, Pradeep ji, is that as far as Mr. Trump is concerned, he's been so inconsistent that it has become impossible to arrive at a deal with the Americans. You don't really know where you stand, because आज आपने एक agreement sign करी, day after tomorrow Mr. Trump will cancel it. फिर क्या होगा? Yes. और जैसे अभी वो बोल रहे हैं कि साहब वो क्या है, वो ग्रीनलैंड के टेक ओवर कर रहे हैं, डेनमार्क इज नेटो कंट्री, वो कहते हैं नेटो को अटैक करेंगे,
मतलब ये क्या रहे हैं, मतलब मेरी समझ के बाहर है, अजीबोगरीब मसला है। In any event, I think we have joined by, at the moment we have we will be joined by the others very shortly. Professor Prajapati इस वक्त हमारे साथ हैं, राकेश प्रजापति साहब. Can we go across to him? And Sushil Vyas ji, both are with us. Sushil Vyas ji, नमस्कार. नमस्कार सुशील व्यास जी, नमस्कार. जय सिया राम सर, जय सिया राम, कैसे हैं? नमस्कार. और प्रोफेसर राकेश प्रजापति साहब, how are you sir? I am fine, sir, and you, sir? We are always fine, sir. We are always fine, and we are very happy that we are not where you are. क्या हम लोग बताएंगे नहीं है, हम लोग बड़े खुश हैं इसलिए कि आपके यहाँ तो टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री और 3 डिग्री है, मतलब सबकी कुल्फी जम रही है यार। तो सुनने में तो ये आया है इतनी ठंड है वहाँ तो सर, इतनी ठंड है, कैसे रह रहे हैं आप लोग वहाँ पे, पता नहीं मुझे। एंड वी आर ऑल्सो ज्वाइंड बाय डॉक्टर अविरल मलिक। अविरल मलिक साहब नमस्कार। जी नमस्कार, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय सिया राम सर। मैं हमेशा जय सिया राम बोलता हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन सीता जी के नाम के बिना राम तो है ही नहीं कुछ। लेट्स गो टू प्रोफेसर प्रजापति फर्स्ट। प्रजापति साहब, योगी साहब ने आज फिर दोहराया है कि जो लोग हिंदुस्तान को बांटने की बात करते हैं, जो लोग हिंदुस्तान को बिखेरने की बात करते हैं, उनकी कोई जगह नहीं है हिंदुस्तान में, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि जैसे सोमनाथ मंदिर के टूटने के बाद 1000 साल हो गए और सोमनाथ मंदिर आज भी कायम है। 1026 में तोड़ा गया था महमूद गजनी द्वारा और आज 2026 में आज भी वैसे का वैसे ही कायम है। और गजनी और उसके जितने भी उत्तराधिकारी थे और जितने उसके डिसेंडेंट थे, आज उनका कुछ पता नहीं है। और एक बार उन्होंने फिर बोला है, तो सर इसके पीछे क्या है? ही इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन, वो बिल्कुल फोकस है उनका, योगी आदित्यनाथ जी का इस चीज के ऊपर। बताएं प्रजापति साहब। राजीव जी, बड़ा आश्चर्य होता है मुझे, विशेष रूप से जब चाइना को देखता हूं, जापान को देखता हूं, रूस को देखता हूं, फ्रांस को देखता हूं, कि आज वो देश तरक्की के दौर में कहां जा रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि कैसे भी करके हम चांद पर पहुंचे, कैसे भी करके 700-800 किलोमीटर की स्पीड चलाएं, रोबोटिक दुनिया में जी रहे हैं, उल्टी ट्रेनें चल रही हैं, ना जाने कौन कौन सी चीजों पर वो बात करते हैं, ना जाने किस किस तरीके की नई टेक्नोलॉजी, नई चीजों की बात करते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कब तक मुगलों की बात करोगे साहब? छोड़ दो ना ये मुगल, अब तो बाहर निकलो क्योंकि अब तो तैमूर आ नहीं रहे, अब तो महमूद गजनवी आ नहीं रहा जी, अब तो कोई इस तरीके का आ नहीं रहा ना जी। नहीं, अरे साहब, अगर इस देश को वास्तव में आप आगे ले जाना चाहते हैं, अगर इस देश की वास्तव में तरक्की चाहते हैं और चाहते हैं सबका साथ सबका विकास हो, तो आज जरूरत है शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की, आज जरूरत है स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने की, आज जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की, आज जरूरत है संसाधन बढ़ाने की, लेकिन कहीं कोई बयान नहीं आता। अरे अभी अब क्या कहूं मैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। हनुमान जी जिन्हें आप मानते हैं, जिन्हें आप पूजते हैं, आप उनकी पतंग बना करके उड़ा रहे हैं। अगर यही कार्य किसी गैर भाजपा के नेता ने कर दिया होता तो भारत की मीडिया तो नंगा नाच कर ही रही होती, और ये भाजपा के जितने भी एंकर हैं या भाजपा से जुड़ी पार्टियों के लोग हैं, ये भी पता नहीं तांडव कर रहे होते क्या कर रहे होते। आप सोचिए, आप बताइए राजीव जी, क्या एक हनुमान जी को पतंग बना करके उड़ा रहे हो? क्या मतलब है आपका? क्या करना? पहले कभी हुआ नहीं है, वैसे पहले आज तक नहीं हुआ। मैं देखो, मैं राजीव जी, मैं सीधी बात है, मैं तो एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, मैं तो बस ये बात करना चाहता हूँ, आखिर कब तक आप मुगलों का रोना रोते रहो? आप नई टेक्नोलॉजी की बात क्यों नहीं करते? नई तकनीकी की बात क्यों नहीं करते? नई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात क्यों नहीं करते? चीन हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ, ठीक है ना? जब उपनिवेश काल चल रहा था,
उस उपनिवेश काल में मोस्टली सभी देश जो है 4-5 देशों के गुलाम थे, ठीक है ना। लेकिन लेकिन वो देश कहां से कहां तरक्की पर पहुंच गए। और आज आज हम भी किसमें लगे हुए हैं? हिंदू मुसलमान में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में, मंदिर मस्जिद में। ये कब तक आप लोग लगे रहेंगे डॉक्टर भाई? साहब, अब्दुल मलिक जी, कभी तो खत्म करिए ना इसका। जी जी कब खत्म करेंगे आप लोग इस चीज को? कब डॉक्टर बात साहब, करेंगे रोजगार की? कब बात करेंगे शिक्षा की? कब बात करेंगे स्वास्थ्य की? कब बात करेंगे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की? वो बताएं भैया। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वही आज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हमारे प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से 330 प्रोजेक्ट, करीबन 10,000 करोड़, 10,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो 202 प्रोजेक्ट ऑलरेडी फास्ट लाइन पे है, फास्ट ट्रैक पे है। 8.1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसमें ऑलरेडी आ चुका है, कर दिया है। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वो रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 3 करोड़ महिलाओं को सेल्फ जो सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के माध्यम से उनको सशक्त करने की बात कर रहे हैं। वहां वो कर रहे हैं, यहां फडणवीस जी कर रहे हैं कि लखपति दीदी, लखपति दीदी, लखपति। तो किस प्रकार से, क्या ये सब डेवलपमेंट नहीं है? गोमती वाटरफ्रंट, गोमती मेट्रो, गोमती के ऊपर मेट्रो नेटवर्क। डॉक्टर साहब, क्या ये दिखने रहा है? कुलदीप जी, बोलिए बोलिए। कुलदीप जी, हाँ हाँ, गोमती रिवर फ्रंट किसने बनवाया था पता है आपको? समाजवादी ने बनवाया। दिल्ली में मेट्रो किसने बनवाई? समाजवादी ने बनवाई। दिल्ली में एकाना स्टेडियम किसने बनवाया? समाजवादी ने बनवाया। दिल्ली में सॉरी लखनऊ में जितनी भी ये योजना थी, दिल्ली नहीं सॉरी लखनऊ की बात कर रहा हूं जी मैं। जी जी लखनऊ में जितनी भी ये लोहिया पथ थे, जनेश्वर मिश्रा पार्क था, राम मनोहर लोहिया पार्क था, ये सारे जितने भी पार्क बनाए आप लोग, आपको आज अगर लखनऊ को, जो लोग लखनऊ को जानते हैं, लखनऊ को देखते हैं, अगर कोई विकास हुआ है तो समाजवादी पार्टी और बहन जी मायावती जी द्वारा हुआ है। ये तो आज तक एक अपना ऐसा कोई स्थल नहीं बना पाए जहां पर ये खुद का एक कार्यक्रम कर ले। इन्हें भी कार्यक्रम करने के लिए समाजवादी पार्टी या बसपा के बनाए हुए स्थल ही नजर आते हैं। कार्यक्रम करेंगे तो कांसीराम पार्क में जाकर के करेंगे, या रमाबाई अंबेडकर पार्क में जाकर के करेंगे, या राम मनोहर लोहिया वाले पार्क में जाकर के करेंगे, या एकाना स्टेडियम में करेंगे। अरे एक तो कोई अपना ऐसा बना लो। लखनऊ के अंदर 9 साल होने जा रहे हैं, 9 साल में कोई एक ऐसा स्थल तो बना लो कि अपनी पार्टी का और अपना कार्यक्रम कर सको कम से कम। अब देखिए प्रदीप जी, वास्तविकता ये, मैं आपके चैनल पर कई बार एक बात कर चुका हूं जी और मुझे वास्तव में दर्द है, टीस है, पीड़ा है, इसीलिए मैं वो बात करता हूं। आपका इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, आपकी इतनी अच्छी योजनाएं आ रही हैं, आपका इतना अच्छा पैसा आ रहा है, तो आपने शिक्षा मित्र का 1 रुपया पिछले 9 सालों में क्यों नहीं बढ़ाया? आज अब्दुल मलिक जी से जवाब जरूर ले लीजिएगा, ठीक है ना? और अब्दुल मलिक जी स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दीजिएगा। पिछले 9 सालों में आपने शिक्षा मित्र का 1 रुपया नहीं बढ़ाया, अनुदेशक का 1 रुपया नहीं बढ़ाया, रोजगार सेवक का 1 रुपया नहीं बढ़ाया, आशा बहनों का 1 रुपया नहीं बढ़ाया। आशा बहन अभी धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है। पंचायत सहायकों का 1 रुपया नहीं बढ़ाया, अनुदेशकों का 1 पैसा नहीं बढ़ाया, विद्युत संविदा कर्मचारी हैं उनका 1 रुपया नहीं बढ़ाया, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं बहुत सारे जो सीएससी पर लगे होते हैं, सारे आपने पूरा सिस्टम को ही आपने स्वास्थ्य मंत्रालय को पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया। उनमें किसी भी व्यक्ति का 1 रुपया बढ़ाओ, मुझे सीधा जवाब दे दे। अगर पैसा आ रहा है तो लोगों को फायदा नजर आना चाहिए। प्रदीप जी सीधी है ना, गिव एंड टेक रूल होता है। गिव एंड टेक कहाँ है? अगर आ रहा है तो जा कहाँ रहा है ये बताए। मुझे तो सीधा, मुझे नहीं आता। मुझे तो इतना आता है कि कोई चीज आ रही है तो बटेगी, बटनी तो चाहिए। कहाँ बटी, किसको दिया गया? लोगों के 18, प्रदीप जी, राजीव जी, कोरोना काल में गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों का 18 महीने का डीए नहीं दिया इस सरकार ने। इतनी संवेदनहीन सरकार है, मानवता विरोधी सरकार है। 18 महीने का डीए आज तक नहीं दिया हुआ है। मैं भी उसमें हूं, मेरा भी नहीं दिया। पुरानी पेंशन नहीं देना चाहते ये लोग, खुद को 4-4, 5-5, 6-6 पेंशन लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की खत्म हो गए बेचारे,
मुझे मुझे मैं बिल्कुल उनका सम्मान नहीं करता। क्यों नहीं करता? खुद 8-8 9-9 10-10 पेंशन लेते थे और सरकारी कर्मचारी की एक पेंशन खत्म करके चले गए। क्या हालत हुआ? इसीलिए उनकी विचार उनको उनको बहुत अच्छा किया, इसीलिए इन लोगों ने तो इनकी अस्थियों को 50 जगह बहाया जा करके उनके 50 टुकड़े करके फेंक दिए भाजपा वालों ने। ये हालत है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सर क्या है कि मैं मानता हूं अटल जी की सरकार थी जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करी थी, लेकिन उसके बाद 10 साल तक 10 बरस तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। वो ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस ला सकते थे ना सर, राकेश प्रजापति जी? बिल्कुल बिल्कुल मैं मान रहा हूं, मतलब ये मानता हूं मैं, कांग्रेस ने ये गलती की है, ठीक है, लेकिन कांग्रेस के लोग आज कम से कम राहुल गांधी ये तो कह रहे हैं कि ठीक है, और मान ही नहीं रहे, कह ही नहीं रहे। जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही है हर जगह लागू हो गई। हिमाचल में लागू कर दी, राजस्थान में लागू कर दी, कर्नाटक में लागू कर दी, छत्तीसगढ़ में उन्होंने लागू करने का प्रयास किया, नहीं कर पाए, लेकिन जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां उन्होंने लागू कर दी। जब भाई कांग्रेस को लगा, पहले विरोध जब हुआ तब वो नहीं कर पाए, लेकिन आज तो उन्होंने कहा, और आज वो मैनिफेस्टो में लिखते हैं, उनके मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन हमेशा रहती है, और ओपीएस की बात भी करते हैं। लेकिन ये भाजपा वाले तो कभी ओपीएस की बात ही नहीं करते। जी, डॉक्टर अविरल मलिक साहब, क्या ये बात ठीक है कि शिक्षा मित्रों का एक भी रुपया नहीं बढ़ाया गया? दूसरी बात यह है कि जैसे वो खुद बोल रहे हैं कि इनका खुद का डीए जो है वो भी नहीं दिया अभी तक कोरोना काल का। तो ये क्या है सर अविरल मलिक साहब? स्टेट के पास इतना ज्यादा पैसा आ रहा है, आपका जो स्टेट जीडीपी है इट इज नंबर 2 इन द कंट्री आफ्टर महाराष्ट्र, और योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं हमारा तो $1 ट्रिलियन नहीं $1.5 ट्रिलियन होगा अभी बहुत जल्दी। तो सर पैसे की तो कमी नहीं है जहां तक मैं समझता हूं। आप बताएं डॉक्टर अविरल मलिक सर प्लीज। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से प्रजापति जी का, तो प्रजापति जी आप मौजूद हैं। प्रजापति जी ने एक बात कही कि आखिर कब बात करेंगे विकास की, रोजगार की, शिक्षा की, चिकित्सा की, बेरोजगारी की। तो निश्चित रूप से हम गरीब पीड़ित शोषित वंचित दलित आदिवासी महिला युवा बेरोजगार संत सबके हित की बात करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस आधार पर निश्चित रूप से हम चलते हैं। रोजगार की हम बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की हम बात करते हैं, और किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट समाप्त हो इसकी हम चिंता करते हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की, वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से आए, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो, इसकी भी हम चिंता करते हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है जो प्रजापति जी ने कहा डेवलपमेंट, बिल्कुल निश्चित रूप से डंके की चोट पर मैं इनकी इस बात का समर्थन करता हूं कि डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए, और हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। हम रोजगार की बात करते हैं, हम गरीबी के विषय पे बात करते हैं कि किस रूप में गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण हो, रोजगार युक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण हो, बेरोजगारी मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण हो, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में हो, और किस तरीके से उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, रोड सेक्टर का डेवलपमेंट हो, एजुकेशन सेक्टर का डेवलपमेंट हो, हेल्थ सेक्टर का डेवलपमेंट हो, टूरिज्म सेक्टर का डेवलपमेंट हो। तो निश्चित रूप से हम इसकी चिंता करते हैं, और ग्राउंड लेवल पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सबके मध्य में है, बिल्कुल स्पष्ट भी है, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय आरोप प्रत्यारोप का, वो अपनी जगह एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जो जनता के मध्य में जब भारतीय जनता पार्टी जाती है, हम लोग जाते हैं निश्चित रूप से रिपोर्ट कार्ड के आधार पर अपने विषय को लेकर जनता के मध्य हम जाते हैं, और उसी विषय के आधार पर जनता हमारे रिपोर्ट कार्ड में मुहर लगाकर पुनः जिता के भेजने का काम करती है। 2017 में वह सरकार बनी थी, विकास किया, इसीलिए 2017 में सरकार एक तरीके से बनी क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार थी, और केंद्र की सरकार के द्वारा निरंतर विकास देश भर में किया गया था। तो जनता को लगा कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अगर आएगी तो उत्तर प्रदेश में विकास होगा, और उसी के आधार पर जनता ने यूपी में 2017 में वोट दी, फिर पुनः 2022 में भी वोट दी। अगर जनता को लगता कि 2017 से 2022 18, 19, 20, 21, 22 5 साल अगर विकास नहीं किया तो निश्चित रूप से जनता हरा देती। लेकिन जनता ने अगर वोट दी तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ विकास के मुद्दे पे, रोजगार मैं के आपसे मुद्दे पे, एक ग्रामीण स्पेसिफिक विकास, सवाल शहरी पूछता हूं विकास के मुद्दे पर सर, एक स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं मैं आपसे। आप बागपत से, ठीक है ना सर? बागपत शुगर केन का इलाका है, गन्ने का इलाका है। वहां पर आज की तारीख में किसान इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि उनको पैसे नहीं मिल रहे सर। जो शुगर मिल्स के जो सेठ है वहां पे, और जो गवर्नमेंट रन शुगर मिल्स भी हैं सर, वो पैसे नहीं दे रही किसानों को।
उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लिखा, प्रधानमंत्री जी को लिखा है। और तो और छोड़िए, अभी तक जो किसान आत्महत्या सिर्फ महाराष्ट्र में हुआ करती थी, अब तो यूपी में भी शुरू हो गई है। अब आप मुझे बताइए सर, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास तो बहुत पैसा है, उनका खुद का अकाउंट देख लीजिए। तो ये क्या हो रहा है? मैं तो आपके इलाके की बात कर रहा हूं जी, मैं कहां डिनाई कर रहा हूं, मैं तो बिल्कुल मैं आपकी बात का 100% सपोर्टर हूं, और राकेश प्रजापति जी जो कह रहे हैं मैं तो उनकी बात का भी समर्थन कर रहा हूं। लेकिन हाँ, मैं केवल इतना कह रहा हूं, विकास हुआ तभी जनता ने वोट दिया, नंबर 1। नंबर 2, हम विकास की बात करते हैं, विकास पे ही बात होनी चाहिए और अन्य मुद्दों पे बात नहीं होनी चाहिए। तो किसानों का बकाया कब दोगे सर? तो किसानों का बकाया कब दोगे? जो शुगर मिल्स का बकाया पता नहीं कितने हजार करोड़ का है, वो तो किसानों को मानना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, वो एक मुद्दा है निश्चित रूप से, जो आपने बागपत का विषय उठाया, बागपत का वो मुद्दा है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और जब बागपत का कोई मुद्दा होता है तो हम भी इस विषय को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, BL संतोष जी को, अन्य सभी नेताओं को इस विषय पर अवगत भी कराते हैं समय समय पे, जो भी यहाँ का विषय होता है। और जहां तक विषय है एक तरीके से बागपत के रीजन का, तो जो भी किसानों का विषय रहता है निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी तक उस बात को हमारे द्वारा पहुंचाया जाता है, और प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचाया जाता है, कृषि मंत्री जी तक भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक्शन भी होता है। सर मैं लेटेस्ट बता दूं आपको क्या एक्शन हुआ है, मैं बता देता हूं आपको क्या एक्शन क्या हुआ है। योगी जी ने फौरन चिट्ठी लिख दी थी फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि एकदम इनका पैसा रिलीज किया जाए। ये 6 महीने पहले की बात है सर, आज तक नहीं हुआ सर। आप मुझे बताइए, योगी जी ने चिट्ठी लिखी है सर, ऑर्डर दिए, राइटिंग में ऑर्डर दिए, दिस अमाउंट हैज टू बी रिलीज नाउ, अभी तक रिलीज नहीं हुआ सर। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, Dr. Malik, you have the money. Why aren't you releasing it? Sir, the Chief Minister himself has ordered it. In spite of that, it is not being released. So what is going on there? आप बताइए ना सर, क्या हो रहा है अंदर? नहीं, बिल्कुल होगा, निश्चित रूप से किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ आपने बागपत शुगर केन की ब्रेकिंग न्यूज के रूप में हेडलाइन भी चलाई जिस तरीके से नीचे, तो निश्चित रूप से अच्छी बात है। बागपत का नाम हमारा देश भर में आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, देख पा रहे हैं। और इसके साथ साथ जहां तक हमारे बागपत का विषय है, ग्राउंड लेवल पे निश्चित रूप से काम होता है, किया जाता है। लेकिन विकास की जो बात है, डॉक्टर मलिक, अखिलेश यादव जी आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा कि SIR इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिहार डिफीट। बिहार में SIR के माध्यम से आप जीते हैं, आज वही हाल है। आप यूपी में SIR के माध्यम से करीबन 3 करोड़, लेस देन 3 करोड़ वोटर्स को डिलीट किए, जो बेसिकली पीडीए से। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस अखिलेश यादव जी श्योर दैट 2027, ये कौन सी नीति है? आपको पहले पता चलता है कि 3 करोड़ वोटर डिलीट होने वाला है, आपको पहले हर चीज से इंफॉर्मेशन मिलता है। ये इंस्टीट्यूशनल लीक आपको फेवर करने के लिए, योगी गवर्नमेंट को फेवर करने के लिए, इसका विरोध है। It should be a neutral platform. Dr. Malik. जी बिल्कुल, देखिए आपका एक तरीके से कंसर्न सही है और सवाल भी सही है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से पर्टिकुलरली जिस तरीके से राजीव जी ने भी कहा था कि बागपत का विषय हो, गन्ने का विषय हो, तमाम सारे विषय हैं, निश्चित रूप से इनका हल किस रूप में हो जल्द से जल्द, इसकी हम एक तरीके से चिंता करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसानों की बात होनी चाहिए, गरीब की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए। SIR के बात है, 3 करोड़ डिलीट हो गए पीडीए के, आपको पहले इंफॉर्मेशन कैसे मिल जाता है? इंस्टीट्यूशनल लीक किस प्रकार से है? आप इसके लिए रोकने के लिए क्या? तो राकेश, देखिए हमारे यहाँ से राकेश टिकैत जी आते हैं मुजफ्फरनगर से, तो राकेश जी को कहां से इंफॉर्मेशन मिले? राकेश टिकैत जी कह रहे थे कि मैंने वो वीडियो सुना है, हालांकि 40,000 वोट कटे बीजेपी के एक पर्टिकुलर विधानसभा की, उन्होंने बात की थी कि इस विधानसभा में, मुजफ्फरनगर की एक विधानसभा में 40,000 बीजेपी के वोट कट गए, तो राकेश टिकैत जी ने कह दिया। अब और उसके साथ साथ जहां तक विषय हमारा, तो निश्चित रूप से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक किस प्रकार से मजबूत हो, इसकी चिंता करते रहे। और SIR का जहां तक सवाल है, SIR क्या है? देखिए SIR क्या है, बिल्कुल स्पष्ट है। जिसकी 18 साल की उम्र हो गई उसका नाम जोड़ा जा रहा है, जिसका देहांत हो गया उसका हट जा रहा है। तो इसमें अविरल मलिक जी, एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रजापति जी वांट्स टू मेक अ स्मॉल इंटरवेंशन, देन वी गो टू सुशील व्यास जी। क्या है सर, SIR में जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू हो रहा है, उसमें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अरुण प्रकाश जी को नोटिस आ गया इलेक्शन कमीशन से, आप प्रूव करिए कि आप भारतीय नागरिक हैं। अरे सर, he has been the chief of naval staff. सर क्या कर रहे हैं सर? अविरल मलिक जी, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। आप कुछ बोलना चाह रहे थे सर?
डॉक्टर प्रजापति, यू वांटेड टू से समथिंग, सर बोलिए। नहीं, मेरी एक पीड़ा है ना, वो पीड़ा खत्म नहीं होती। आपके कम से कम आपके चैनल पर बैठ के थोड़ा सा समय मिल जाता है, बाकी पे तो समय नहीं मिल पाता है। अगर मिल की सच सच बताइए, क्या कोई आपकी रिश्तेदारी में शिक्षा मित्र नहीं है, पंचायत सहायक नहीं है, रोजगार सेवक नहीं है, सर उसकी जानकारी आंगनवाड़ी नहीं नहीं है? ये मैंने कोई क्वेश्चन जो किया था उसका उत्तर आपने नहीं दिया। नहीं दिया। क्या किसी का भी आप आंगनवाड़ी को मात्र 2000 रुपए मिलते हैं? प्रदीप जी आप सुनिए जरा, नहीं, रियलिटी बताओ राकेश जी, मेरी रिश्तेदारी में, मेरी जानकारी में ना कोई आंगनबाड़ी में है, ना कोई शिक्षा मित्र है, और ये आपने 4-5 बात की, मेरी रिश्तेदारी वाकई में कोई नहीं है। रसोईया को मात्र 2000 रुपए मिलते हैं महीने में, मात्र 2000 रुपए, 66 रुपीज पर डे। आप बताइए 66 रुपए में क्या हो सकता है? अगर कहीं 3 स्टार होटल में बैठ करके चाय पी ली तो 500 रुपए की चाय मिलेगी, उसे मात्र 66 रुपए मिल रहे पूरे दिन में। राइट, सो लेट्स गो टू सुशील व्यास जी। सुशील व्यास जी, जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी ने आलोचना किया कि एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, महायुति जिस प्रकार से मराठी मानुष के अस्तित्व खतरे में, मराठी मानुष के अस्तित्व खतरे में, करप्शन के बारे में बात किए, अजित पवार के बारे में बात किए, आगे जाके उन्होंने कहा कि आपके मास्टर जो है दिल्ली से ऑर्डर लेते हैं, इसलिए इस देश का नुकसान, महाराष्ट्र का नुकसान हो रहा है। हाउ डू यू सी दैट? इज इट जो राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं मराठी मानुष का अस्तित्व खतरे में, इस चीज को कैसे आप कहोगे, देखोगे? बजाज जी, नामबियाल जी, नमस्कार। नमस्कार सर, जय श्री राम, थैंक यू। बजाज जी, और आप लोग कितने वर्षों से पत्रकारिता में है और कितने चुनाव आप महाराष्ट्र में देख चुके हैं? याद नहीं है सर। क्या ये पहली बार उद्धव ठाकरे जी ने ये शब्द उच्चारित किए हैं क्या? नहीं। जब चुनाव आता है मुंबई खतरे में लगती है, मुंबई महाराष्ट्र से अलग होती हुई दिखती है। बिल्कुल दिखती है, पर ये बताते नहीं, और आज तक तो मुंबई महाराष्ट्र में बनी हुई है, उसकी राजधानी है और आगे भी रहेगी। अब वो पता नहीं किस बेसिस पे वो कह रहे हैं, और जनता भी मजा लेने के लिए उनकी बातों को सुन लेती है। वो अन्नामलाई साहब ने कहा ना सर कुछ, वो नहीं, अन्नामलाई साहब ने कहा, उसको देखिए, लोगों ने सुनने में शायद विथ रिस्पेक्ट गलती की है। उन्होंने ये कहा कि मुंबई एक अंतरराष्ट्रीय शहर है, मुंबई महाराष्ट्र का पार्ट नहीं है। It's a global city. That's what he said. मैं अगर कह दूं कि राजीव बजाज जी फलाने स्टेट से हैं, इट डजंट मीन राजीव बजाज जी इंडियन नहीं है। जी दुरुस्त बात है ना? तो उन्होंने, अन्नामलाई ने ये कहा, उसको अगर आप मिस इंटरप्रेट करके लोगों में एक भ्रम फैलाना चाहते हैं तो वो एक गलत बात है। अन्नामलाई ने ये नहीं कहा कि महाराष्ट्र से मुंबई को अलग करके गुजरात या कहीं अन्य राज्य में ले जाएंगे। उन्होंने कहा मुंबई एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का शहर है, तो इसका इट डजंट मीन कि मुंबई इज नॉट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, है ना? तो उसको उस तरीके से अगर राजनीतिक भ्रम फैलाना, ये ठीक है, उन लोगों को हताशा निराशा है उनके बारे में अब हम क्या कहें। और आपका क्या प्रश्न था नामबियाल जी में? तो दूसरा है कि मुंबई में रहना, देवेंद्र फडणवीस जी का पर टारगेट थे कि नागपुर में रहने वाले यहाँ के प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से हैंडल कर सकता है, मुंबई में क्या चाहिए वो उसका जवाब तो फडणवीस साहब ने सतारा से आते, शिंदे जी सतारा से आते, दोनों मिलकर कैसे इस मुंबई के सॉल्यूशंस को कैसे पहचानेंगे, मालूम कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? ऐसा है नामबियाल जी कि मुंबई कर तो है ना, जो 1,04,00,000 मतदाता परसों वोट डालेंगे, जो 1074 उम्मीदवार हैं वो तो मुंबई के वोटर हैं, तभी तो खड़े हैं, नहीं तो हो नहीं सकते। तो यानी हम मुंबई कर हैं। अब हम कहाँ से आए, लेकिन इस समय मुंबई की भविष्य के बनाने में, उसको सुरक्षित रखने में इक्वल के भागीदार हैं। तो क्या कोई मुख्यमंत्री हमेशा ही मुंबई से आया है क्या? तो क्या उस मुख्यमंत्री को मुंबई शहर के जनता से महानगर पालिका के चुनाव में वोट मांगने का अधिकार नहीं है क्या? या तो वो स्पष्ट हो जाए। तो फिर उद्धव ठाकरे जी थाना क्यों गए, कल परसों संभाजी नगर क्यों गए वोट मांगने, अगर वो मुंबई का है तो? भाई जो बात वो यहाँ कह रहे हैं वही वहां की महानगर पालिका में उनके लिए लागू होती है। वो कौन से वहां के स्थानीय हो गए? फिर परसों नासिक गए। तो ये जो राजनीति में जो बच्चे लोग हैं, जैसी बातें, छोटे छोटे बच्चों जैसी बातें करते हैं, ये बाहर का अंदर का, देखिए मुंबई कर है,
जो मतदाता मुंबई का है, जो उम्मीदवार मतदाता है तो खड़ा है, वो भविष्य की तरफ देखता है मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से यहाँ की जनता की कैसे सेवा की जा सकती है। लेकिन एक चीज उसमें मुझे समझ में नहीं और आई, फिर सुशील व्यास जी। देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत कड़वी बात कही और सच्चाई की बात कही कि आदरणीय बाला साहेब ठाकरे खुद मुंबई से नहीं थे, दूसरी शहर से आकर आए के थे। यहाँ सेटल हुए थे, तो उसका जवाब आज तक उन्होंने 3 दिन हो जी, गया जी। नहीं दिया। नहीं कहा कि अडानी, मगर बाला साहब ठाकरे जी ने अडानी को मुंबई को नहीं बेचा था, ये उद्धव जी का कहना है। आप कहा आप डेवलपमेंट अडानी 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 नहीं ऐसा है मैं नम्बियार जी, बिल्कुल बहुत लंबी लिस्ट का परसों थाना के चुनाव में मुंबई में नहीं सॉरी शिवाजी पार्क में आदरणीय राज ठाकरे जी ने बताई टीवी के स्क्रीन पे। मुझे आप बताइए कि अगर कोई व्यक्ति मेहनत से, लगन से देश के कानून व्यवस्था को मानते हुए अगर अपना विकास करता है तो क्या वो कोई गलत है, क्या असंवैधानिक है क्या? आप अच्छा ये होता राज ठाकरे जी मुंबई की जनता और देश की जनता को आप लोगों के माध्यम से ये बताते कि अडानी ने इस प्रोसेस में अपनी प्रगति करते हुए किस देश की संवैधानिक चीज को तोड़ा है, किस कानून को तोड़ा है, किस कानून को तोड़ करके उनको भेदभाव पर तरीके से वर्तमान सरकार ने उनको मदद की है। और कोई भी आदमी मेहनत से अपना आगे बढ़ता है तो उसको आप कैसे कह दो कि भाई वो गलत हो गया? वो उसका अगले का तकदीर और मेहनत है। कर्मण्यवाद कार्य से मां फलेनो कदाचन, अगला मेहनत कर रहा है उसको फल मिल रहा है। भाई उन्होंने ये कहा है सुशील व्यास जी, दोनों ने, उद्धव जी और राज ठाकरे जी ने, भाई ये आखिरी मौका है, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान बिक जाएगा अडानी को अगर आपने इस बार वोट नहीं दिया हमको, ऐसा बोला उन्होंने सर। नहीं उन्होंने मुंबई के लिए कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर मराठी इस समय एक नहीं हुए जी। तो ये शायद मुंबई शहर हम लोग इतिहास जमा हो जाएगा, महाराष्ट्र से अलग हो जाएगा, क्योंकि गुजरात के बॉर्डर तक वो लोग आ चुके हैं। ये तमाम, ये देखिए मैंने आपसे जैसे शुरुआत में कहा, ये एक राजनीतिक किदवंतियां हैं अपने फेवर में एक माहौल बनाने के लिए, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं दोनों भाई। कोई मराठी इसको मानता है क्या? कौन मानेगा सर इसको? आप मैंने मेरा अंतिम वाक्य था बजाज जी, ये अस्तित्व की लड़ाई है। अस्तित्व की लड़ाई में हताशा निराशा में आदमी छटपटाट में कुछ भी कह रहा है, उसको कोई समझदार व्यक्ति तो मानेगा नहीं। एक और चीज मैं आपसे पूछने वाला था, वो रह गई बात इसके पहले कि मैं प्रजापति साहब के पास जाऊं। सर ऐसा है, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, जब भी कोई चुनाव होता है ना, फॉर एग्जाम्पल जो भी चुनाव होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी, जब भी वो चुनावी कैंपेन के लिए जाते हैं, ही प्रेजेंट्स एन ऑल्टरनेटिव मॉडल कि ये हमारा विकल्प रहेगा, हम लोग ऐसे 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 काम करेंगे अगर आप हमें वोट देंगे तो। ठीक है सर, यहां पर Raj is a very dear friend of mine. I absolutely love him. So is the case with Uddhav Thackeray ji. The point is, where is their alternative model? What is the alternative model? आप मुझे बताइए ना. Like for example, why did people vote for Modi ji in 2014? Because he presented an alternative. He said, make me prime minister or bring the BJP to power. भारतीय जनता पार्टी को आप सत्ता में लाइए और मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीजें करूंगा। अब उन्होंने आज तक कभी ऐसा बोला नहीं है। आपने अगर सुना हो तो पता नहीं मुझे, आप बताइए सर, आज तक कभी सुना है? बजाज जी, थोड़ी सी फैक्चुअल, इसमें हमें थोड़ा सा फैक्चुअली समझना होगा। ऑल्टरनेट कौन कहता है? जिसको नए व्यक्ति को आना है किसी को हटा के। जो 25 साल से वहां पर बहुमत में है वो ये बताए मेरी उपलब्धि क्या है। मैंने इस शहर के लिए 25 साल बहुमत में रहते हुए 25 साल महानगर पालिका के माध्यम से क्या सेवा की। अल्टरनेट तो हमको बताना है महायुति को, जो हमने देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हमने अपना एक मैनिफेस्टो 3 दिन पहले बताया है कि हम लोग अगर आए बहुमत में तो हम क्या क्या करेंगे इस मुंबई शहर की जनता के लिए। और ऑलरेडी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह है, जन कल्याण की योजना है जो सुचारू रूप से और बहुत ढंग से यहाँ पे लागू है, विशेषकर लाडली बहनों वाली जो योजना है, ये हमने हमारी उपलब्धियों को बताया। अब सवाल अल्टरनेट तो वो बताएगा जिसको आना है। अब जो 25 साल से वहां जमा है वो ये नहीं बता पा रहा है कि उसने 25 साल क्या किया। वो खाली एक ही चीज कह रहा है, जाग जाओ, ये अंतिम मौका है, नहीं तो शहर आपके हाथ से चला जाएगा। अरे भाई, तो शहर को बचाने की जिम्मेदारी 25 साल आपको महाराष्ट्र की मुंबई की जनता ने दी थी ना। आपने कहां से कहां ले जाके रख दिया इस मुंबई शहर को। जी जरूर बात। Let me go to Dr. I want to, if you want, Vyas ji, do you want to answer? एकनाथ शिंदे जी ने रहमान दकायत का बात किए थे। रहमान दकायत जिस प्रकार से बीएमसी 3 लाख करोड़, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स, जो आगे जाके अमित साटम जी ने भी कहा और एकनाथ शिंदे जी ने रहमान दकायत।
तो उद्धव जी ने कहा पैब्लो एस्कोबार को भी ढूंढिए, पैब्लो एस्कोबार जो ड्रग्स सतारा। जी। तो क्या सचमुच जो हम लोग, आपने गए बार भी प्रकाश शिंदे जी के बारे में बोले मैं रात भर बहस करने को तैयार हूं, प्रूफ लेके आओ, मगर उद्धव जी जिस प्रकार से कहा कि पैब्लो एस्कोबार के एक्टिविटीज पर नजर रखना चाहिए, तो हाउ डू यू सी दैट? क्या वो ड्रग्स को और एकनाथ शिंदे जी को रिलेट कर रहे? देखिए, ड्रग्स अगर कोई भी बनाता है या उसको कोई भी बेचता है या उसके बारे में कोई भी तरह की मतलब कंजम्पशन के लिए कोई भी उसको प्रेरित करता है तो ये निंदनीय है। लेकिन मैं एक बार फिर अपनी बात को दोहराना चाहूंगा कि आप जब एकनाथ शिंदे जी के भाई को अगर उससे जोड़ते हो तो कोई भी कानूनी तथ्य तो सामने चाहिए ना। आप तो खुद वकालत करते हैं नाम्बियार जी, आप बताइए कौन सा एविडेंस आज तक करीब 1 महीना हो गया, एक भी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है क्या जो ये सीधा कोरिलेट करता हो उनके भाई को, या उनको कोरिलेट करता है कि भाई अपने भाई को वर्तमान उप मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे ने इस तरह से मदद की, या उनके किसी स्टाफ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के स्टाफ से किसी अधिकारी ने या किसी कर्मचारी ने उनको मदद की? तो ये अन्यथा कोई मेरा भाई है या कोई किसी का भाई है, आप उसके बारे में अगर इस तरह की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ये अन्याय होगा उस व्यक्ति के साथ जो महाराष्ट्र की जनता के बीच में 24 घंटे 700 दिन मदद सेवा करने के लिए तत्पर है। But great campaign, especially from Eknath Shinde Sahab in all the 29 corporations. Absolutely lovely. Very hard work he is doing. Yes, It's very injustice. I can see that. I can see that. और जो मैनिफेस्टो में आप लाड़की बहन के साथ जोड़ दिया 5 लाख लोन फ्रॉम बीएमसी टू महिलाएं, ये एक रेवोल्यूशनरी शायद डिसीजन हो सकता है व्यास जी। और जो एकनाथ शिंदे जी कहा कि जो लाड़की बहन को लखपति दीदी बनाओ, नो वुमेन एम्पावरमेंट में भले आप बोल रहे हो, इट साउंड्स फैसिनेटिंग फॉर कॉमन मैन। नाम्बियार जी, इतना ही नहीं, हमने ये भी कहा है कि जो मुंबई महानगर पालिका की बेस्ट बसें हैं, बेस्ट, उसमें सफर करने वाली हमारी एक बहन को आधा यानी 50% कंसेशन मिलेगा। जी, ये फ्री ये कर भी दो एक ना बड़ी सर, बात है। फ्री कर दो, क्या कर रहे हो आप? ट्रैवल फ्री कर करने दो, की भी women स्थिति के आ लिए क्या है? जाएगी। अगर 4 साल स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं की, ये लोग बिगाड़ के नहीं जाते तो हम वो भी स्थिति बता देते। जी, right. Let's go across to Professor राकेश प्रजापति साहब। प्रोफेसर राकेश प्रजापति साहब, क्या है कि ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि मैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, $1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसके अलावा there are lots and lots of statistics that I have over here from the Reserve Bank of India, even from UP and from other sources, which say that UP is starting to do well. कि हो सकता है कि जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, इट इज बिकम अ गुड प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन सर आप ये बताइए कि जब मैं ये देखता हूं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जब बात होती है, सोशल जस्टिस के बारे में जब बात होती है, वहां पर भी यूपी नंबर 1 पे, मतलब इन टर्म्स ऑफ कास्ट रिलेटेड क्राइम। सर ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है ना प्रजापति साहब। अगर यूपी में मान लीजिए जबरदस्त इन्वेस्टमेंट आ रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो जातीय गुनाह नहीं होने चाहिए, कास्ट रिलेटेड क्राइम नहीं होने चाहिए। आप बताइए अब जी। राजीव जी, अभी मैं दूसरे फोन पर ट्वीट देख रहा था जी। अभी की न्यूज जस्ट आधा पौन घंटे पहले की। 4 साल की बच्ची के साथ अयोध्या में बलात्कार हुआ है जी। अब किसी की भावनाएं आहत हो जाएंगी, मैं तो भावनाएं आहत नहीं करना चाहता हूं। अब बाकी आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं जी। क्या फायदा ऐसे राम मंदिर बनवाने का। प्रभु राम जी उस बच्ची का, अब क्या कहूं मैं, ज्यादा कहूंगा तो विरोधाभास हो जाएगा। लोग मुझे नास्तिक बोलने लगेंगे, लोग मुझे बुद्धिस्ट बोलने लगते हैं। आखिर अयोध्या में राम मंदिर बन गया और 4 साल की बच्ची का बलात्कार नहीं रुक रहा है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, राम राज्य चल रहा है। बागपत के पास में ही आता है अब्दुल मलिक जी, मेरठ। क्या हुआ? 4 दिन हो गए, 4 दिन कुछ नहीं हुआ। कहाँ है बुलडोजर? सो गया है बुलडोजर, क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरीके से क्यों नहीं चला वहां बुलडोजर। मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है।
बेटी दलित थी और आरोपी मुख्यमंत्री जी के सुजातीय थे। और वहां के जो नेता है ना, एक जी संगीत सोम, मैं तो नाम ले रहा हूं ना, पूरा खुल करके परिवार को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा, बचा लिया। ये हालत है राजीव बजाज जी। एक दलित लड़की के साथ बलात्कार होता है मेरठ के अंदर, उसकी मां को मार दिया जाता है और उसको अगवा करके ले जाया जाता है, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। कानपुर के अंदर 3 दिन पहले की घटना है, रक्षक ही भक्षक बन जाता है। एक दरोगा 14 साल की लड़की को बलात्कार करता है, सामूहिक बलात्कार करता है, गैंग रेप करता है। कहाँ है भैया बुलडोजर? कहीं बुलडोजर चला अब्दुल मलिक जी? क्यों नहीं चला? वहां पर वो क्योंकि यूट्यूबर वही- को शायद अरेस्ट किया गया है। कानपुर वाला जो किस्सा है, वो एक यूट्यूबर भी था साथ में, उसको अरेस्ट किया गया है। जो पुलिसकर्मी थे वो अभी लापता है, ये लेटेस्ट है वहां। हाँ जी हाँ, पुलिसकर्मी जो मेन आरोपी है वो तो अभी भी लापता है ना, जी। मेन आरोपी अभी भी लापता। जी तो आप जो बात कहना चाह रहे थे, अब क्या कहा जाए इस प्रदेश के बारे में? इस प्रदेश के बारे में ये है कि कोई कथावाचक अगर यादव पकड़ में आ जाता है जी तो उसका पता है क्या कर दिया जाता है? मुंडन कर दिया जाता जी, है। देखा था। यहाँ की महिला का मूत्र से छिड़काव किया जाता है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर घटना हुई है कि साहब आप चोटी क्यों रख सकते हो, आप तो यादव हो, यादव रखने पर चोटी नहीं रख सकते, उसकी चोटी उखाड़ दी जाती है, कटवाई नहीं जाती है, उखाड़ दी जाती है। तो इस क्या क्या होगा इस देश का? ये जी। सोचने का विषय है। क्या जी। हो, और जब से मैं दो राज नहीं, मैं दूसरी बात कहना, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, वायरल ट्रेंड चल रहा है, मतलब जो हमारे क्रिएटर है ना, क्रिएटर, वो बड़ा अच्छा क्रिएटर, जितने भी यूट्यूब क्रिएटर, फेसबुक क्रिएटर, वो एक ट्रेंड में चला रहे हैं, वो बड़ा अच्छा चला रहे हैं। बोले देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, फिर वो हिंदू खतरे में है। आपने भी सुन लिया होगा, खूब मीम्स बन रहे हैं उस पर। तो ऐसा क्यों ना करो, कोई मुसलमान को प्रधानमंत्री तो बना दो कि मुस्लिम जो है खतरे में हो जाए। अरे वास्तविकता, वो मीम गलत नहीं है, सही बात है। मैंने तो कहा है कई बार, अरे इस देश में देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का उपराष्ट्रपति हिंदू, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश का रक्षा मंत्री हिंदू, 28 स्टेट के राज्यपाल हिंदू, 28 स्टेट के मुख्यमंत्री हिंदू, 1000 जिले हैं, उन जिलों में जिलाधिकारी ज्यादातर हिंदू, एसएसपी हिंदू, डीएम हिंदू, सब हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में कहीं नहीं है। भाजपा जो है अपने मकसद पूरा करने के लिए हिंदुओं को खतरे में डालने का काम कर रही है, और ये हिंदू तभी खतरे में आया है जब से भाजपा आई है। इसलिए इस भाजपा को सफाया कर दो, हिंदू कभी खतरे में नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब, विकास भी और विरासत भी। योगी जी कह रहे हैं कि विकास के दृष्टिकोण से हम विरासत को छोड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू एलिविएट पॉवर्टी 3 साल में उत्तर प्रदेश से इट विल बी एलिमिनेटेड, पॉवर्टी विल बी एलिमिनेटेड। उन्होंने कहा देखो जिस प्रकार से हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जो आपके काल में, समाजवादी काल में होता था, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज तक लेके आया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। बट विरासत को नहीं भूलेंगे। काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मस्जिद हमारे एजेंडा में है, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि हमारे एजेंडा में, अलग अलग मंदिर का लिस्ट दिया है जिसमें मदन मोहन टेम्पल। तो क्या उसमें गलत क्या है? विकास भी है, विरासत भी है, सेवा सुरक्षा भी है, सुशासन भी है, योगी जी का कहना। डॉक्टर साहब। कुलदीप जी, हाँ कुलदीप जी, मेडिकल कॉलेज एक काम करिएगा, आपके कुछ लोग हो तो पता करिएगा कौन से जिले में मेडिकल कॉलेज खुला है। पता है इन्होंने मेडिकल, हर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज कैसे बनाया है? जो जिला अस्पताल होते थे ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कह दिया ये मेडिकल कॉलेज होंगे, ठीक है ना। एनएमसी से कह दिया इन्हें मेडिकल कॉलेज की मान्यता दे दीजिए सभी को, और एनएमसी ने उन्हें मान्यता दे दी। वही सरकार उनकी चल रही है, सब कुछ उनका चल रहा है, कोई बात ही नहीं। लेकिन क्या कहीं मेडिकल कॉलेज खुला? अब्दुल मलिक जी बता देंगे मुझे, मेरे बाद में अब्दुल मलिक जी कोई मौका मिलेगा ही। अब्दुल मलिक जी बताएं कि नए मेडिकल 75 जिले हैं, 75 जिलों में कितने जिलों में नया मेडिकल कॉलेज खुलाओ, जहां नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ,
नई बिल्डिंग बनी हो, नए बेड पड़े हो, नई नियुक्ति। अच्छा अच्छा 75, अच्छा एक एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, मैंने पहले ही कहा ना, एक छोटा सा क्वेश्चन है और बड़ा तर्कशील क्वेश्चन है। 75 मेडिकल कॉलेज बने, अच्छा 75 मेडिकल कॉलेज में रखने के लिए कुछ स्टाफ तो निकला होगा। जी। कितनी भर्तियां हुई, कितने डॉक्टर रखे गए वहां पर, कितने फार्मासिस्ट रखे गए, कितने आईसीयू में रखने वाले रखे गए, कितने लैब टेक्नीशियन रखे गए, कितने ओटी रखे गए, कोई आंकड़ा हो तो दे दें भाई। 75 कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोले होंगे तो 75 का विज्ञापन तो निकला होगा। एक विज्ञापन बता दो भैया, केवल हवाई हवाई, केवल हवाई हवाई, इतनी हवाई हवाई लोग समझ। और देखिए ये यही मैं कह रहा हूं, ये हवाई हवाई बातें आपकी जनता समझ चुकी है। हाँ ये मानता हूं मैं, जैसे अब्दुल मलिक जी कुछ चीजें मानते हैं वैसे मैं भी मानता हूं कि हाँ इन्होंने लोगों की भावनाओं को के साथ खिलवाड़ करके, जैसे बिहार में खिलवाड़ किया 10,000 रुपए दे करके, ऐसे ये 22 में आ गए। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, अब जनता जाग चुकी है, और 2024 में इसका रिजल्ट इनके सामने आ गया था, और 2027 में परिणाम पूरी तरीके से इनके सामने होगा। और 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन सर ये तो बता दें, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये जो लिस्ट है वो है कॉलेजेस एस्टैब्लिश्ड इन 2021 इंक्लूड दोज इन ईटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, देवरिया, जौनपुर। एडिशनली कॉलेजेस अप्रूव की तो खैर बात छोड़ दीजिए, अकबरपुर वगैरह में। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, प्रोफेसर प्रजापति, यू आर अ प्रोफेसर सर, कोई भी यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को अप्रूवल के पहले यू हैव टू गो थ्रू वेरियस स्टेप्स, ठीक है सर। किसी भी मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल के लिए आपको पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन मेडिकल काउंसिल, आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। द एमसीआई हैज टू गो थ्रू ऑल दो स्टेप्स कि इसमें कौन कौन सी लैब है, पैथोलॉजी लैब है, इसके अंदर ये एंडोक्रिनोलॉजी की लैब है, इसके अंदर रेडियोलॉजी लैब है, इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं, जिस हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड है वो टीचिंग हॉस्पिटल है या नहीं है। सर आप ये बताइए, इसको अप्रूवल किसने दिया है? आई डोंट थिंक एमसीआई कुड हैव गिवन एन अप्रूवल। हाँ बोलिए सर। राजीव जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने, धन्यवाद देता हूं, मुझे कुछ याद भी दिला दिया आपने। आपको पता है भारत कैसा देश है? भारत एक ऐसा देश है जिसमें स्कूल बंद होने पर मिठाइयां बांटी गई, भांगड़ा हुआ, एक दूसरे को मालाएं पहनाई गई, जश्न मनाया गया। कहां पर? भारत में। कौन से में? मेडिकल कॉलेज में ही। उसी मेडिकल कॉलेज को जिसका आपने कहा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सितंबर में मान्यता दी थी, अभी सितंबर में मान्यता दी 50 सीटों की जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसका नाम था श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज। शायद बता रहा हूं राजीव जी, आप भी इत्तेफाक रखते होंगे, और मेरे ख्याल से ये एक नाथ शिंदे वाली पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इन्हें भी शायद शर्म आ जानी चाहिए थोड़ी बहुत। तो इस चीज को देख करके बुरा मत मानिएगा, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, मुझे दिल दुखता है मेरा, इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे टीस होती है, दर्द होता है एक शिक्षक होने के नाते। देश पूरे विश्व में भारत इकलौता देश होगा, पूरे विश्व में भारत इकलौता देश होगा जहां पर मेडिकल कॉलेज जैसा कॉलेज बंद होने पर खुशियां मनाई गई। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, डूब कर मर जाना चाहिए आप लोगों को। अगर रत्ती भर भी शर्म हो आप लोगों को तो आप लोग बताइए। लोग स्कूल खोलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ज्योतिबा फुले जी ने संघर्ष किया, सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संघर्ष किया, तब जाकर के हम लोगों को शिक्षा मिली। और आप लोग, लानत है आप लोगों को, लानत आनी चाहिए आप लोगों को। एक विद्यालय बंद होने पर आप लोग खुश हो रहे हो, एक आप लोग मिठाई बांट रहे हो, आप लोग जो है जश्न मना रहे हो, डीजे बजा रहे हो, साउंड बजा रहे हो, डांस कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को।
क्या तरीका Right. बना करके So let's रख दिया? get Dr. Aviral बताइए, Malik. मैं अगर कहीं कोई पूरे विश्व में कोई ऐसा देश हो, मुझे बता दीजिए, पूरे विश्व में ऐसा कोई देश हो, Dr. Malik. एक देश का नाम बता दीजिए जहां पर स्कूल बंद होने पर खुशियां मनाई गई हो। Dr. ये आपके Malik. देश में हुआ है, आपके देश में हुआ है, ये आपकी सरकार में हुआ है, ये आपके मुंह पर तमाचा है, ये आपके मुंह पर आपका मुंह बंद हो जाना चाहिए इन चीजों पर कम से कम। डॉक्टर मलिक कुछ कहना चाहेंगे सर आप इस पे, प्लीज बोलिए। One district, one medical college. बोलिए कहाँ सर। पर है मेडिकल कॉलेज? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से मैं मेडिकल कॉलेज के विषय में बात करूंगा, और उसके साथ साथ प्रजापति जी कह रहे थे मेरे परिवार में, मेरी रिश्तेदारी में, मेरी जानकारी में कोई आंगनवाड़ी में है, कोई शिक्षा मित्र है। देखिए मेरी जानकारी में या मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा नहीं है। हालांकि जहां तक विषय है, शिक्षा मित्रों का बहुत सम्मानित है, और निश्चित रूप से आंगनवाड़ी के सभी लोग भी बहुत सम्मानित हैं। निश्चित रूप से हम उनकी चिंता करते रहे हैं, करते रहेंगे। आपने विषय उठाया, आपने संज्ञान में लेकर के इस विषय को आपने उठाया, आपका भी इसमें धन्यवाद। हमें कोई किसी रूप में ऐतराज नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है, एक तरीके से स्कूल नहीं, किस प्रकार से अगर बस एक चीज टोकूंगा, मैं टोकता नहीं हूँ आपका मैं, देखिए बस इतना जरूर पता करिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना जरूर पता करिएगा, पिछले 9 सालों में 1 रुपए की बढ़ोतरी आपकी सरकार ने किसी की भी नहीं की है। ठीक है, ये जरूर पता करिएगा। और नेक्स्ट टाइम जब हम कहीं बैठे तो आप जरा, या फिर हम लोग फोन पे भी, हमारे फोन भी एक्सचेंज हो चुके हैं, हम फोन पर बात कर लेंगे इस चीज को लेकर के, ठीक है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये लोग परेशान है, दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। नहीं, आपने बिल्कुल सही विषय उठाया, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। प्रजापति समाज की भी आप बात करते हो, उसका प्रतिनिधित्व करते हो, हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। आप जो अपना विषय रख रहे हो निश्चित रूप से वो आपका अधिकार है। और जहां तक विषय है किस रूप में लाभ हो, किस रूप में एक तरीके से शिक्षा मित्रों को लाभ हो, निश्चित ही उत्तर प्रदेश की सरकार उस विषय में चिंतित है। हम पूर्ण रूप से इस विषय में चिंतित हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से उत्तर प्रदेश किस रूप में एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़े, हर सेक्टर में मजबूत हो, तो इसकी भी हम चिंता कर रहे हैं। और आज हम 2026 में बैठे हुए हैं, और आज एक तरीके से अगर देख लिया जाए 13 तारीख है, तो अब 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। तो निश्चित रूप से सबको जनता के मध्य में जाना है, जनता तय करेगी, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से पर्टिकुलर अगर बात कर जाए समाजवादी पार्टी की भी, तो समाजवादी पार्टी अलायंस में बैठी है अभी कांग्रेस पार्टी के साथ। तो कांग्रेस का भी अलायंस और समाजवादी पार्टी का जो कांग्रेस का अलायंस है, ये भी नहीं रहेगा, ये अलग अलग हो जाएंगे। ये सपा के ही लोग मानते हैं, निचले स्तर के सभी लोग, और चाहते भी हैं। तो बहुत उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से परिवर्तन, जो देखो सपा की तरफ से कोई बयान ऐसा आता नहीं है, और जिनकी आप बात कर रहे हो, जिनका बयान आता है, उनका कांग्रेस में कोई वजूद नहीं है, ये आप भी जानते हो, ठीक है ना। जिनका बयान आता है इस सीट को लेकर के, उनका कांग्रेस में कोई वजूद नहीं है। बाकी सपा की तरफ से कभी भी किसी का स्टेटमेंट आपने इस तरीके का सुना नहीं होगा, ठीक है सर। मुझे जरा दूसरे चैनल पर जाना है। वो सारे चाहते हैं चुनाव लड़ना, तो इसी के आधार पर मैंने कहा, जो मेरे फीडबैक मेरे पास आया उसी के आधार पर केवल मैंने कहा। और रही बात ये शिक्षा की, चिकित्सा की बात कर रहे थे, मेडिकल कॉलेजेस की, बागपत में मेडिकल कॉलेज का क्या हाल है, समाजवादी पार्टी के कोई भी किसी भी साथी को जाकर पता कर लेना चाहिए। जिस तरीके से बागपत में किस रूप में एजुकेशन सेक्टर में और उसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर में आगे बढ़े, मैंने अपने गृह जिले की बात कर दी। अब रही बात उत्तर प्रदेश की पूर्ण रूप से, तो 75 के 75 जनपदों में, 403 की 403 विधानसभा क्षेत्रों में, 80 के 80 लोकसभा क्षेत्रों में किस प्रकार से, जो अगर फंड्स की बात कर जाए, किसी को फंड्स की कमी नहीं होने दी जाती है, किसी क्षेत्र को, किसी डिपार्टमेंट में, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर कोई व्यक्ति विपक्ष का भी है, समाजवादी पार्टी का व्यक्ति कोई डिनाई नहीं कर सकता। नितिन गडकरी जी के यहाँ जाता है तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से फंड्स मिलता है, डेवलपमेंट होता है, गडकरी जी करवाते हैं, केंद्र सरकार भी करवाती है। और रही बात उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश की सरकार भी करती है। चाहे किसी मंत्री के पास इनका प्रतिनिधि यानी कि विधायक जाए, कोई आपत्ति नहीं है, कोई इनका सांसद जाए, किसी क्षेत्र का सांसद जाए, किसी हमारे केंद्र के मंत्री या राज्य के मंत्री से मिले, तत्काल विषय का निदान समाधान किया जाता है। और उसके साथ साथ फंड्स की कमी किसी क्षेत्र में, किसी कंस्टिट्यूएंसी में, लेकिन बड़ी अजीबोगरीब बात है, एक छोटी सी अजीबोगरीब बात है, मुझे मालूम नहीं है प्रजापति साहब ने वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के बारे में यहाँ पर क्यों कहा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में तो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, और वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जो है, मैं मानता हूँ सेंटर के अंडर आता है। और चीज में समझ नहीं पा रहा था थोड़ा सा, मैं जरा समझ नहीं पाया, नेशनल मेडिकल काउंसिल जी, और उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा था कि भाई अगर आप मुसलमानों को आप एडमिशन नहीं देना चाहते थे, मेजॉरिटी को नहीं देना चाहते, तो आप एज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन
अपने को रजिस्टर कर लेते, क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी में है जम्मू एंड कश्मीर में, तो दे कुड हैव इजीली रजिस्टर्ड देमसेल्व्स एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। लेकिन जो नेशनल मेडिकल इंस्पेक्शन टीम जो गई थी, कमीशन जो गई थी, उन्होंने देखा कि उस हॉस्पिटल में फैसिलिटीज अप टू डेट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की गई। लेकिन वो आपसे सवाल पूछना मुझे जरा वो थोड़ा स्ट्रेंज बट आरएस क्या एजुकेशन बिल्कुल, और दूसरी चीज मैं इसीलिए ये चीज मैं नहीं समझ पा रहा था कि वो प्रजापति जी किस हिसाब से सवाल पूछे हैं। जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ना तो समाजवादी पार्टी है और ना ही जम्मू कश्मीर की चिंता कभी सपा ने की है, और अब मुझे नहीं पता ये ऑफिशियल इनका नया स्टैंड आया हो तो, बाकी उमर अब्दुल्ला पता नहीं, लेकिन बीजेपी की सरकार तो नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पे, ये पक्का है। लेकिन सुशील व्यास जी, आई जस्ट वांट टू नो एजुकेशन सिस्टम के बारे में, आरएसएस हैज इन्फिल्ट्रेटेड द एजुकेशन सिस्टम, जो बार-बार आरोप लग रहा है डॉक्टर मलिक, ये है कि मनुवादी एजुकेशन सिस्टम इज साइडलाइनिंग द दलित कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी को साइडलाइन कर रहा है मनुवादी एजुकेशन सिस्टम। कितना सच्चाई है इसमें? नहीं, दलित कम्युनिटी का तो जहां तक सवाल है तो दलित कम्युनिटी के हमेशा हम हक में रहते हैं, पक्ष में रहते हैं। आज ही एक किसी चैनल पे मेरी डिबेट हो रही थी मेरठ की, वो एक घटना है मेरठ के किसी गांव में, पर्टिकुलर अभी जो गांव है वो मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन किसी गांव में मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं या इस प्रकार की बात कही जा रही थी वहां के उनके कॉरेस्पोंडेंट के द्वारा कि भाई वहां मंदिर निर्माण नहीं होने दिया जा रहा है। तो और दलित समुदाय वहां पूर्ण रूप से है, जो हिंदू पक्ष है वो दलित समुदाय है। अब मेरा तो ऐसे लोगों से सवाल तो ये बनता है कि भाई जो दलित समुदाय है, तो दलित समुदाय के सबसे बड़े पैरोकार कौन है? चंद्रशेखर आजाद रावण जी है, आजाद समाज पार्टी है, और दूसरा एक तरीके से अगर बात कर जाए तो बहुजन समाज पार्टी है, मायावती जी हैं, और दोनों ही कहीं इस विषय में भी मैं समझता हूँ नजर नहीं आए। अनेकों विषय होते हैं लेकिन ना तो बसपा नजर आती है, ना आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद रावण जी नजर आते हैं, ना सो कॉल्ड दलित चिंतक नजर आते हैं जो खुद को दलित चिंतक होने का दावा करते हैं, वो भी बहुत से विषयों में कहीं नहीं दिखते हैं। और रही बात एक तरीके से अगर बात करें, जाए उदित राज जी हैं, कांग्रेस में है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पूर्व सांसद हैं, हालांकि बीजेपी से वो सांसद थे, दलित चिंतक हैं, वो भी कहीं ऐसे मुद्दों में नजर नहीं आते। जो दलितों की, अगर किसी दलित के साथ कोई घटना हो जाती है, मैं तो चाहता हूं किसी के साथ ना हो, जितनी हुई है अगर हिस्ट्री की बात करी जाए, किसी विषय में ना तो बसपा सामने खड़ी होती है, ना ही आजाद समाज पार्टी कहीं खड़ी दिखती है, ना रावण जी खड़े दिखते हैं, ना दलित चिंतक खड़े दिखते हैं, ना उदित राज जी खड़े दिखते हैं, ना कांग्रेस खड़ी दिखती है, ना विपक्ष खड़ा दिखता है तो केवल मीडिया और भारतीय जनता पार्टी खड़ी दिखती है। भाई यही बात है एक्चुअली योगी आदित्यनाथ जी ने कही है, आज भी कही है कि भाई देखिए बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर जब अटैक हो रहा है तो आप लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं, पता नहीं क्या आपको सांस सूंघ जाता है, क्या हो जाता है आपको, बट एनीवे लेट मी गो अक्रॉस टू सुशील व्यास जी। सुशील व्यास जी, क्या है कि जिस स्पीड से एकनाथ शिंदे जी काम करते हैं, जबरदस्त करते, तब मानना पड़ेगा, शुरू से ही ऐसे थे, कोई नई बात नहीं, लेकिन अभी तो उनको मतलब इतनी लेवल ऑफ एनर्जी जो आ गई उनमें, मतलब जबरदस्त है। तो मैं देख करके हैरान हो गया। मतलब हम तो पहले से ही जानते थे सोते बहुत कम है, पहले से ही जानते थे रात के 1:30 बजे उनको फोन कर लो, कोई भी 2 बजे फोन कर लेता, 3 बजे फोन कर लेता है, अगर फोन उठाया नहीं है तो वापस फोन करते हैं, हाँ क्या हुआ, मालूम है मुझको, खुद अपना व्यक्तिगत मेरा खुद का तजुर्बा है। और जिस प्रकार उन्होंने ठाणे को लेकर के, पनवेल को लेकर के, मुंबई को लेकर के जबरदस्त काम जो किया है, मतलब I don't have words to describe it. It's absolutely amazing. But here I want to ask you, उनका जो प्लान है स्पेशली अर्बन डेवलपमेंट को लेकर के, इट इज वेरी लॉजिकल। उन्होंने ये कहा है, एक तो पगड़ी सिस्टम को लेकर के जो मुंबई में है, पगड़ी सिस्टम को लेकर के भाई वी हैव टू रिफॉर्म इट। नंबर 2, जितनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं भले उनके पास कन्वेंस ना हो, वो फिर भी रीडेवलपमेंट के लिए जा सकते हैं, विच इज फैंटास्टिक। सुशील व्यास जी प्लीज। सर आपका फोन म्यूट पे है। हाँ बजाज जी, मैं आपकी बातों को मैं निश्चित रूप से डिटेल में जवाब दूंगा, लेकिन बड़ी पीड़ा हुई वो प्रजापति जी चले गए, उन जिन शब्दों में उन्होंने हम लोगों को एड्रेस किया, डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ठीक है, वो प्रोफेसर हैं और मैं 2 कॉलेजों का अध्यक्ष हूँ, मैं जानता हूँ प्रोफेसर एक हाईएस्ट लेवल होता है शिक्षा के क्षेत्र में। अगर वो व्यक्ति अगर इतनी अच्छी बात करके सुनने के लिए भी न बैठे तो अच्छी बात नहीं। आपने दुरुस्त कहा कि वो जो जम्मू कश्मीर की वो जो मेडिकल कॉलेज को बंद करने का कारण टेक्निकल था, तो संबंधित
समिति जब वहां गई इंस्पेक्शन के लिए, उन्होंने देखा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी मेंबर वगैरह भी वहां ढंग से नहीं थे। दूसरा कारण, अगर वो ये सेमी प्राइवेट संस्था है जिसमें वैष्णो देवी माँ वैष्णो देवी ट्रस्ट का भी पैसा जाता है डोनेशन के रूप में, अगर वहां पर अगर आप 50 में से 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को चयन करोगे, मात्र 8 दूसरे लोगों को चयन करो, निश्चित रूप से वहां पर असंतोष होने वाला है। तमाम चीजों को ख्याल में रखकर, और फिर जैसे कि अविरल जी ने भी कहा कि हमारा वहां पे क्या रोल है भाई, एनडीए का क्या रोल है, शिवसेना का और बीजेपी ने वहां पे क्या किया, तो आप हमको क्यों गाली दे रहे हो? और गाली दे रहे हो तो बताइए तथ्यात्मक दृष्टि से कि हम किस तरह से दोषी है, फिर आप हमको जहां चाहे डूबने का निर्देश दीजिए, हम डूब जाएंगे। लेकिन डूबने का हमने क्या किया पहले वो तो बताएंगे। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ कि पगड़ी, आप जानते हैं मुंबई में रहते हैं, पगड़ी का मतलब किस तरह से मकान मालिक अपने भाड़ूतों को तंग करते हैं, वेकेट करवाने के लिए स्मॉल काज कोर्ट में जाकर के केस वगैरह फाइल, भले आप 50 साल 60 साल पीढ़ी दर पीढ़ी वहां रह रहे हो, किस तरह से उनको तंग किया जाता है। उसको रिपेयर रीडेवलपमेंट करने के लिए बार बार मकान मालिक उनके लिए अवरोध बन के खड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस सारी चीज को, इन कठिनाइयों को ध्यान में रखकर लाखों की संख्या में, विशेषकर दक्षिण मुंबई में जहां से मैं आता हूं, वहां पे पगड़ी सिस्टम बरसों से है और वहां रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा। पुरानी बिल्डिंग है, ज्यादातर माहिम के इस तरफ, यानी शहर के इस तरफ टुवर्ड्स कुलाबा है, उनको वापस स्ट्रक्चरल किस तरह से मजबूती प्रदान की जाए, क्लस्टर रीडेवलपमेंट के माध्यम से या रीडेवलपमेंट के माध्यम से, उसके लिए ये मकान मालिकों की जो सो कॉल्ड तानाशाही पूर्ण रवैया था उसको हटाने के लिए उन्होंने कहा पगड़ी सिस्टम वाले इनको मकानों को भी रीडेवलपमेंट करने के लिए हम एक रास्ता निकालेंगे, जिससे पगड़ी सिस्टम के जो हमारे भाड़ूत हैं वो तंग न हो। इसी तरह की एक स्कीम आपको पता हो तो एक 20 साल पहले निकली थी कि 100 महीने का भाड़ा भर के जो टेनेंट है वो अपने जगह का मालिक बन सकता है, लेकिन वो स्कीम अनफॉर्चुनेटली सेक्शन 103B ऑफ बॉम्बे रेंट एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गई और स्टे लेकर के अभी तक वहां पेंडिंग है फाइनल ऑर्डर, तो इसलिए उसमें आगे नहीं बढ़ सके। और इसलिए एक बहुत ही हिम्मत भरा डिसीजन एकनाथ शिंदे जी ने ये कहा कि पगड़ी सिस्टम में जो भाड़ूत लोग जो सफर हो रहे हैं उनको हम एक न्याय दिलाने के लिए उनका भी रीडेवलपमेंट कर सके। उन्होंने एक स्कीम म्हाडा के माध्यम से, जिसके वो खुद मंत्री हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी उनके पास है। और दूसरी चीज आपने कही ये पनवेल थाना वगैरह, देखिए हर नेता होता है जिसके दिल के नजदीक कोई इलाका होता है। जैसे शरद पवार जी का बारामती, वाईपी चौहान जी कराड़ सतारा थे, वसंत दादा पाटिल सांगली थे, देखिए, और फडणवीस जी नागपुर के हैं। तो ये जो एकनाथ राव जी शिंदे का जो थाना और थाना डिस्ट्रिक्ट जो है वहां के, वो कोई जमाने में आनंद दिगे जी के बाद में थाना के शिवसेना प्रमुख हुआ करते थे। तो वो स्थानीय स्तर पर जो जनता से उनका जो रोज का मेल मिलाप और जो संपर्क रहा, उसके चलते उन्होंने कई विकासशील काम की योजनाएं वहां पे बनाई, वहां पे उसको आगे बढ़ाया और जनता का भी उतना ही समर्थन मिला, चाहे वहां का सांसद हो, चाहे वहां का विधायक हो, चाहे वहां की महानगर पालिका हो। हमेशा ही शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना वहां पे जीतते रही और यही कारण है कि वो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं कि जिस इलाके ने उन पे विश्वास और प्रेम दिखाया है उसका विकास, चौमुखी विकास कैसे हो, वो करने में वो लगे रहते हैं। आपने ठीक कहा कि जिन कोऑपरेटिव सोसाइटियों के पास कन्वेंस नहीं है, उन्होंने एक डीम कन्वेंस की एक स्कीम निकाल के कहा भाई आपका बिल्डर आपको धोखा दे के चला गया और उसके बाद उसकी कन्वेंस के अभाव में अगर आपका रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यू कैन अप्लाई फॉर डीम कन्वेंस एंड यू विल गेट इट। नंबर 1। और कई लाखों बिल्डिंगों को, जैसे आपने देखा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं था, उसी तरह से बिल्डर बेच के चला गया, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं ला, नतीजा ये हुआ पानी में दिक्कत हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी में दिक्कत हो रही है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा लगातार आपराधिक मुकदमे जो वहां के रहवासी उन पे हो रहे थे। तो ये सारी परिस्थितियों को देखते भाई उसमें जो फ्लैट परचेजर है उसकी कोई गलती नहीं है, उसने आंख खोल करके वहां पे फ्लैट खरीदा है, लेकिन जब वो पोजीशन लिया उसके पहले जो बिल्डर है उसने ओसी लिए बिना, दैट इज ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लिए बिना वहां से पलायन कर लिया। अब नतीजा है उस परिस्थिति में ये जो भुगतने वाले फ्लैट परचेजर, जो जिसको हम बोनाफाइड परचेजर कहते हैं, उनको एक मदद और एक राहत दिलाने के लिए कि ओसी का एक एमनेस्टी स्कीम शिंदे जी ने निकाली है कि आप 6 महीने के अंदर
जिसका जिसका भी ओसी है और नहीं है, और वो अगर बिल्डिंग म्युनिसिपल कानून के अनुसार लीगली बनी हुई है, तो यू कैन अप्लाई एंड यू विल गेट द ऑक्यूपेशन No, but what I really liked about it was this. I want to know from you and from Pradeep ji and Aviral Malik साहब, आप तीनों के तीनों वकील हैं साहब, तीनों वकीलों के बीच में मैं अकेला नॉन लॉयर बैठा हूं सर। ऐसा है, उन्होंने ये कहा है, शिंदे साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है, उन्होंने कहा कि देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, योर सोसाइटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, आफ्टर दैट यू डोंट नीड एनीथिंग, थैंक यू वेरी मच। डीम्ड कन्वेंस भी मिलेगी, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा, अगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट यू रिक्वायर, व्हिच इज फैंटास्टिक, व्हिच वाज द ओरिजिनल आइडिया फॉर डीम्ड कन्वेंस, सिंगल विंडो क्लियरेंस, दैट इज कन्वेंस इज डीम्ड, दैट्स इट। व्यास साहब पहले आप बोलें प्लीज। वही मैं कहने जा रहा था कि भाई जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जिसकी एक लिस्ट आउट है, वो आप डिप्टी रजिस्ट्रार के सामने जाइए, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के सामने आप अपनी एप्लीकेशन लगाइए। अब एक नोटिस दी जाएगी, जो अपना लैंडलॉर्ड तो मैं नहीं कह सकता, बिल्डर जो है वो आएगा, अपनी बात रखेगा, क्यों उसने कन्वेंस नहीं किया, क्या नहीं किया, मान लो कुछ बाकी है या कुछ बैलेंस बाकी है पेमेंट, अगर वो जो भी ऑब्जेक्शन, नॉर्मली 99.9% ये सब कोई बिल्डर आने वाला नहीं, बिल्डर और एक दो हियरिंग के बाद उनको डीम कन्वेंस का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। उस बेसिस पे जाकर के वो सब रजिस्ट्रार के सामने वो सोसाइटी जो है वो रजिस्टर हो जाएगी। और इसका मतलब ये हुआ कि जो जमीन है जिसपे मकान बना है, उस जमीन का मालिकाना हक उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास हो जाएगा। प्रॉपर्टी कार्ड आज की तारीख में क्या है, इंडिविजुअल फ्लैट तो मालिक है, लेकिन वो जो सोसाइटी की जो बिल्डिंग जिसपे बनी है, उसका अगल बगल का इलाका जो है कंपाउंड का, वो मालिक सोसाइटी नहीं है, उसको मालिकाना हक जब तक नहीं होगा, जब तक रीडेवलपमेंट की बात नहीं की जा सकती। इसलिए वो मालिकाना हक दिलाने के लिए ये डीम कन्वेंस को लाया गया। पगड़ी सिस्टम, एक्चुअली हम लोग कार्यक्रम किए थे बजाज साहब, हम लोग ने जहां कालबा देवी है, चीरा बाजार है, करीबन 400-500 जूने बिल्डिंग टोटली सफरिंग, कोई पगड़ी सिस्टम से त्रसित है, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से तकलीफ है, कोई डेवलपमेंट। तो आज एक उम्मीद का किरण है, बिकॉज हम जब इंटरव्यूज वहां पर करते थे लोगों का, बोले कि रात को हम अंदर जब जाते हैं तो सवेरे जिंदा वापस लौट के बाहर निकलेंगे, इसका भरोसा नहीं था। ऐसे डिलैपिडेटेड स्टेटस पे आज भी उतरे डिलैपिडेटेड स्टेटस पे। आप भी साउथ मुंबई में बहुत देखे हैं, काम किए हैं, आज रिलीफ है कि नहीं सुशील व्यास जी? पगड़ी सिस्टम आप रामबिहार जी जिस इलाके का नाम ले रहे हैं, कालवा देवी चीरा बाजार, वो पहले आज कुलावा विधानसभा क्षेत्र है, कोई जमाने में मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था। मैंने वहां पे चुनाव लड़ा है विधानसभा का, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, तो मैं जानता हूँ। वो 1-2 नहीं, आप 400-500 कम बता रहे हैं, 1 जीरो बढ़ा दीजिए उसमें। कम से कम 5000 मकान ऐसे हैं जिसमें लिफ्ट नहीं है, 5-5, 6-6 माले का लकड़े की सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है, और उसका रीडेवलपमेंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मकान मालिक चाहता है कि तंग होकर के भाड़ूत खाली करके भाग जाए। करेक्ट, आप समझे? भाड़ूतों को किस तरह से अमानवीय तरीके से तंग किया जाए, ये उनका शोषण। सर ये वही इलाका है सुशील व्यास जी, भुवनेश्वर का वही इलाका है जहां पे धीरूभाई अंबानी रहा करते थे, जेएन स्टेट में। धीरूभाई जेएन स्टेट में रहते थे जी। एंड उसके आसपास अगर आप देखें, वो अभी प्रदीप जी बात कर रहे थे, हम उसके ऊपर कितने शो कर चुके हैं हम लोग। वो सारे वो जो पॉलिशिंग सेंटर हैं, इतनी उसमें फनल्स लगी हुई हैं, क्या है वो क्रोमियम ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चिमनी ऑल ओवर। एक अलग इश्यू है, वो बंगाली जो कारीगर आए सोने चांदी वाले, उनकी वजह से जो लगातार पिछले 15-20 साल में बंगाली सोने चांदी के कारीगर वहां पे बड़ी संख्या में आ गए उससे, लेकिन अब वो धीरे धीरे वहां से निकल रहे हैं, जगहों पे जा रहे हैं। और अभी भी 300-400 अभी भी है वहां पे। एवरीथिंग सेड एंड डन, वी मस्ट अप्रिशिएट भिंडी बाजार जो इलाका है, जिसको लोग पता नहीं क्या कहते हैं, बहुमत से वहां पे अल्पसंख्यक लोग हैं, लेकिन जितनी समझदारी के साथ उन्होंने पिछले 10 साल में वहां का रिडेवलपमेंट किया है, वहां जाके देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कितनी अच्छी इमारतें वहां पे आ रही है। सो दैट वी मस्ट अप्रिशिएट, at least the kind of development which they are doing. तो 4000 बिल्डिंग जो पुराने हैं आपके क्षेत्र के, जो पुराने आपके क्षेत्र है, you think justice will ultimately prevail because this पगड़ी सिस्टम बिल जो लेके आए एकनाथ शिंदे जी ने, और जो ओसी क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो उन्होंने कहा कि ये कानून बने जल्दी, सबको ओसी मिले, you think there is big difference there? नहीं, वो तो मिल ही जाएगा। देखिए नोटिफिकेशन आ गया है, गवर्नमेंट का जीआर भी आ गया है, जो विल अप्लाई इन विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम दे विल बी डेफिनेटली गिवन सर्टिफिकेट एंड क्लियरेंस। ये अमनेस्टी स्कीम लाई गई है इसीलिए कि उनको राहत मिले, और वंस दे गेट दिस दे कैन कम टुगेदर एंड अप्लाई फॉर रीडेवलपमेंट एंड लैंडलॉर्ड विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम।
Fantastic. That's right, absolutely fantastic. And up till now, because those buildings are dangerous, sir, बहुत dangerous हैं, खतरनाक बिल्डिंग है वो, तो पता नहीं कब क्या हो जाए. और आजकल जैसे मुंबई शहर में बारिश हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब it can lead to a disaster. In any event, gentlemen, thank you very much for staying on with us. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और मैं एक बार फिर चलते चलते एक छोटी सी खबर और बता दूं कि in terms of defense development, I believe वो जो सुखोई 57E की जो पूरी फैक्ट्री नासिक में लगनी थी, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो यूपी में भी लगने वाला है, सुनने में ये है. इट इज ऑलमोस्ट डन. सो कंग्रेचुलेशंस टू यू डॉक्टर अविरल मलिक. आई थिंक यूपी विल बिकम द डिफेंस हब ऑफ इंडिया वेरी शॉर्टली. पूरा डिफेंस हब बनने वाला है सर उत्तर प्रदेश बहुत जल्द हिंदुस्तान का. आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, अविरल मलिक साहब और सुशील व्यास जी. थैंक यू वेरी जी, मच. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. प्रजापति जी से मैं जरूर पूछ लीजिएगा कि आखिर उन्होंने हमको क्यों, जब आएंगे वापस सर, आप वापस मिलेंगे. नहीं, मगर आपने नोट किया होगा सुशील जी, इमीडिएटली आपको देखकर उन्होंने माफी भी मांगा. मैं हाथ जोड़कर सुशील, आई मीन जो भी, मैं नहीं चाहता माफी मांगे, लेकिन मैं एक देखिए एक Correct. खून का जो आरोपी Yes. होता है उसको भी जज पूछता है तुम्हें कुछ कहना है क्या, तो हमें डूबने के पहले कहने के लिए नहीं, ये लेकिन तो आपका बताइए रोल क्या है क्या उसमें? मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि बीजेपी का उसमें क्या रोल है, शिवसेना का क्या रोल है उसमें, तो कोई रोल ही नहीं है. मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड. आप तो नामयाल जी रविरल जी जानते हैं, देयर इज ए सीआरपीसी धारा 313, अंत में जज पूछता है तुमको कुछ कहना है क्या. Yes, मैं बिल्कुल. तुम्हें सजा सुनाता हूं उसके पहले, तो वो तो कम से कम उतना तो हमसे पूछ लेते. yes. Now, or he can question Dr. Omar Abdullah, certainly. He can question the Indian Medical Council of India. He can question the Indian Medical Association, the medical examination team that went over there, जो inspection के लिए गई थी. नहीं, इस उनको तरह के भाषा का प्रयोग करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है. ये पर्टिकुलर जो शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया लाइव डिबेट में, सर वो ऐसा था, मुझे जो नहीं, बजाज जी, मैं आपके पीठ के पीछे भी कहता हूँ, देयर इज अ रेपुटेशन ऑफ योर चैनल, और आपके चैनल पे हम दूसरों को नजरअंदाज करके आके बैठते हैं, क्योंकि यहाँ एक उसका स्टेटस है, यहाँ की एक गरिमा है, यहाँ के जो हमारे संवाद आपस में होता है उसका एक क्या कहते हैं गहराई के साथ रिश्ता है. इस तरह की हल्की बात करके जाना, वो उसकी क्या होता वो क्या है कि वो माता, उसकी थोड़ी सी रेपुटेशन वो माता जी का नाम है उसमें, वैष्णो देवी माँ का नाम है उसमें, तो हो सकता है कि उससे वो शायद ट्रिगर हो गए हों कि ये हिंदुत्व वाले ऐसे होते हैं टाइप. अरे कहना चाहिए, देखिए विरोधी दल में है, उनको अधिकार है विरोध करने का, लेकिन भाषा की मर्यादा होनी चाहिए. नहीं, in any event, the board of the Vaishno Devi Medical College has a lot to answer for. Let's be very clear. The trustees have a lot to answer for. एक तो रजिस्ट्रेशन में उन्होंने गलती करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में गलती करी है, बाकी सब चीजों में गलती करी है. अरे भाई क्या आप सर मेडिकल कॉलेज चलाना कोई क्या मतलब कोई मजाक है क्या? ऐसा नहीं होता सर. जी आप चर्चा के दौरान कह रहे थे कि अगर वैसा था तो उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कर लेते. माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में भी आप 50% कर लेते ना, आप कहा 42 वर्सेस 8. Yes. Even minority institution can't discriminate like this. Yes. But the only thing is minority institution in Mumbai. I'm president of at least four colleges, so I know what is minority institution. Yes. So, but all I'm saying is because Hindus are listed as an official minority in Jammu and Kashmir. Let's be very clear. So they could have gone in and registered themselves as a minority institution. That's it. अब क्या है Even minority institution up to a certain level you can go. Na, you can't just say you can't say 100% only Christians will come or Muslims will come. You have to keep seats open for everybody. But in any event, gentlemen, I hope whenever we meet Professor Rakesh Prajapati next, we shall ask him कि इसमें एकनाथ शिंदे साहब की जो सेना है और भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है, जरा ये भी बता दिया जाए, तो ताकि हम लोग और थोड़ा भाषा में सुधार लाए. ठीक नहीं, वो मेरा सुझाव नहीं है, आप लोग कह सकते हैं क्योंकि आपका चैनल है. सर आपका चैनल है व्यास जी, आपका और डॉक्टर अविरल मलिक का चैनल है. लेट्स बी वेरी क्लियर, ये वी आर नॉट रनिंग द चैनल, यू आर. नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच. आश्वासन दे सकते हैं, जब भी आप याद करेंगे हम आपके बीच में आएंगे, दूसरों को छोड़. बट ऑल द बेस्ट सर फॉर 15th एंड 16th. 16th is the result. All the very best. मुझे बुलाइएगा, 16 तारीख को मैं गुलाल से रंगा हुआ दिखूंगा. कमाल है सर. हर हर महादेव, जय भवानी, High level of confidence. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हाय हाय. लेकिन वो कृष्ण भक्त हैं सर. राधे राधे, राधे राधे सर. Right. Thank you so much, sir. And what triggered Prajapati Sahab? I think he went.
I've never seen him like this before. Have you? क्या हो गया था उनको बताओ? He must be under some kind of pressure, I think. Why would he talk like that? I fail to understand. Otherwise, बड़े सभ्य और बड़े civilized और बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं. Yes, In- yes. In any event, please do subscribe to the channel. Channel को subscribe जरूर कीजिएगा. और as far as we are concerned, सुनील जी आप कुछ कहना चाहेंगे subscription के बारे में? No, whenever you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से आप सब लोगों को एक बार फिर नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. Jai जय Hind. हिंद.